آج کسی کو کسی کے لیے وقت نہیں، آج کسی کو کسی کے لیے ٹائم نہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا ایک بڑے عزیز کا انتقال ہوا اور ان کا بہت قریبی رشتہ دار آیا انتقال میں، لیکن ہوا کیا کہ جنازے کی نماز عشاء کے بعد ہوئی تو وہ مغرب کے وقت ہی وہاں سے چلا آیا کہ مجھے اور کام سے جانا ہے، مجھے اتنا وقت نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں کہ ہم اس کے جنازے میں شامل ہو جائیں۔ اگر کسی کے یہاں شادی ہے تو شادی میں فون کر کے پوچھتا ہے کھانا کس وقت کھلایا جائے گا، وہ کہتا ہے کہ کھانا 1 بجے چالو ہو جائے گا دن میں، تو وہ 1 بجے کے وقت ہی پہنچتا ہے۔ کیونکہ پوچھا کیوں اتنے لیٹ آئے تو کہتا ہے ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، دکان کھولنا ہے، کام کاج ہے، ہمیں اپنا کام چھوڑ کر کے آئے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم یہاں پر بیٹھے رہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جب اتنے مصروفیت کے دور میں آج انسان کو انسان کے لیے وقت نہیں ہے تو آپ رات کے 1:30 بجے یہاں پر بیٹھ کر کے کس کا ذکر سن رہے ہیں؟ جب وقت ہی نہیں ہے انسان کو، آپ سے میں کہوں میرے گھر پہ آ جائیے، آپ 1 گھنٹہ بیٹھ جائیے آ کر کے، کیا آپ بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے۔ آج آپ شفقت میاں کے عرس میں آئے اور یہاں رات کے 1:30 بج رہے ہیں اور آپ اولیاء کرام کا ذکر سن رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ جو دنیا میں دنیا داروں کو راضی کر کے جاتا ہے اس کا نام دنیا تک ہی رہ جاتا ہے، اور جو اپنے رب کو راضی کر کے جاتا ہے اللہ ان کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ وہ رہتے بغداد میں ہے لیکن حریر پور میں ان کا ذکر ہوتا ہے، وہ رہتے اجمیر میں ہے لیکن ان کا ذکر بریلی میں ہوتا ہے، وہ رہتے پیلی بھیت میں ہے ان کا ذکر جو ہے دنیا کے دوسرے کونے پہ ہوتا ہے، وہ رہتے بریلی میں ہے دنیا کے کونے کونے پہ ان کا ذکر ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم بھی دنیا سے جاتے ہیں اور اولیاء کرام بھی دنیا سے گئے ہیں، وہ گئے ہیں تو اپنے رب کو راضی کر کے گئے ہیں اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا، زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا، زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا، تو آقا کو اپنے منائے چلا جا۔ تم اپنے رب کو راضی کرو تو صحیح، اللہ تمہارا نام مٹنے نہیں دے گا۔ بات اولیاء کرام کے ذکر سے نکلی تو جسے اللہ روحانیت عطا فرماتا ہے اس کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اب اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل تمام فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ فرشتے پوری دنیا کے کونے کونے پہ یعنی پوری روئے زمین پہ اعلان کر دیتے ہیں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم بغداد میں، غریب نواز اجمیر میں ہے، لیکن پوری دنیا میں غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے، پوری دنیا میں غریب نواز کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرات گرامی اب اپنے ذہن کو قریب کرو اور میں اولیاء کرام کی شان بتا دوں۔ اللہ جسے روحانیت دیتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ جسے روحانیت دیتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اللہ جسے روحانیت دیتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام سخی سلطان باہو علیہ الرحمہ ہے، سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، یہ ایک دن اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ حضرات کھیتوں میں کام کرنا یہ اولیاء کرام کی سنت ہے۔ آپ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، ادھر سے غیر مسلموں کی ایک بارات جا رہی تھی، ان باراتیوں نے پوچھا بابا ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، اب ہمیں راستہ نہیں مل رہا ہے، بابا کیا آپ ہمیں منزل پہ پہنچا دیں گے؟ تو سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کہا کون سے جگہ جانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے محمد پور بتایا، تو آپ نے کہا کہ پہنچا دوں یا بتا دوں؟ تو انہوں نے کہا بابا بتاؤ گے تو ہو سکتا ہے راستہ ہم اور بھول جائیں، ہو سکتا ہے کہیں اور سے ہم بھٹک جائیں، اگر آپ وہاں تک پہنچا دو تو بہت اچھا ہوگا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کہا اپنی اپنی آنکھیں بند کرو۔ تمام غیر مسلموں کی جو بارات تھی سب نے اپنی اپنی آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے بعد میں فرمایا اب اپنی آنکھیں کھولو۔ جب سب نے اپنی آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے تھا، نبی کا روزہ نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ کہتے
कहते हैं बाबा ये तुमने हमें कहां पहुंचा दिया, हम इस मोहम्मदपुर नहीं आना चाह रहे थे, हम तो किसी और मोहम्मदपुर जाना चाह रहे थे। तो अल्लाह के वली का जवाब सुनो, अल्लाह के वली फरमाते हैं अरे बाहू इस मोहम्मदपुर के अलावा किसी मोहम्मदपुर को नहीं जानता है। बरेली का इमाम कहता है उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान अल्लाह वाले हैं। एक लम्हे में सखी सुल्तान बाहू ने बारातियों को कहां से कहां पहुंचा दिया। सबके सब कदमों पे गिर के कहते हैं अब हमें कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। अरे जब सखी सुल्तान बाहू के पावर का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा के पावर का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। ये जिसे अल्लाह रूहानियत देता है, जिसे अल्लाह रूहानियत अता फरमाता है उसका मकाम बुलंद होता है, उसकी शान बुलंद होती है, उसका रुतबा बुलंद होता है, उसका मकाम मकाम सुरैया से बुलंद होता है। आओ जरा देखो जिसे अल्लाह रूहानियत देता है। आज नौजवान हमारे यहाँ पर भी हैं और नौजवान तुम्हारे यहाँ पर भी हैं। आज हमारे नौजवानों की जिंदगी कैसे कट रही है। कोई मोबाइल की स्क्रीन पे जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई टीवी की स्क्रीन पे जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अब अपनी तवज्जो मेरी तरफ दीजिए, आप देखें कोई फेसबुक को देख करके जिंदगी के लम्हात बर्बाद कर रहा है, कोई व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जिंदगी के लम्हात को बर्बाद कर रहा है। ऐ नौजवानों मस्जिद में अजान होती तुम्हारे ऊपर जूं भी नहीं रिंगती है, मुअज्जिन पुकार पुकार के कहता है हय्या अलस सलाह आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन मेरे नौजवान हैं मेरी कौम के अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे जिंदगी बर्बाद करते हैं। हजराते गिरामी अब बताना मकसद ये है कि नौजवान हमारे यहाँ पर भी हैं। और एक नौजवान वो था जो दरिया के किनारे लेटा हुआ था, एक नौजवान वो था जो दरिया के किनारे बैठा हुआ था, दिन को रोजा रखता रात को अल्लाह की इबादत करता। चेहरा देखो तो चेहरा नूरानी है, चेहरा देख करके लोग कह देते थे कि ये आले रसूल है। हजरात तारीख में उनका नाम शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त मिलता है। जब देखा कि भूख ने निडाल कर दिया, जब भूख ने बेचैन कर दिया, सोचने लगे कि कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा करके खा लूं। वाकया बताना मकसद नहीं है, बड़ी तेजी से वाकया बयान करके आगे बढ़ जाऊंगा। जो माफी ज़मीर अब मैं पेश करने जा रहा हूं बहुत गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे लोगों का इम्तिहान लिया है। हजराते गिरामी दरिया में एक सेब बहता हुआ आया, उस सेब को उठाया, एक ही लुकमा खाया था, तकवे ने झंझोड़ के रख दिया, परहेजगारी ने झंझोड़ के रख दिया। ए अबू सालेह ये तुमने क्या कर दिया, अभी तुमने बाग एक सेब खाया है और ये सेब किसी बाग का है और बाग का कोई मालिक होगा, तुमने बगैर मालिक की मर्जी के ये सेब खाया है। कयामत के दिन उस बाग के मालिक ने तुम्हें रब की बारगाह में खड़ा कर दिया और ये कहा कि इसने मेरे बाग का एक सेब मेरी बगैर मर्जी के खाया है, तो क्या जवाब दोगे रब की बारगाह में। परहेजगारी ने आंखों में आंसू भर दिए, तकवे ने आंखों में आंसू भर दिए, रोने लगे कि मैं अपने रब को कयामत में क्या जवाब दूंगा। ये पैगाम है उन लोगों के लिए कि जो होटल पे कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं और पकौड़ी या समोसे उठा करके बगैर इजाजत के खाने लगते हैं, जो दुकानों पे कोई चीज लेने के लिए जाते हैं और दुकानदार के डिब्बे में से चीजें निकाल करके बगैर इजाजत के खाने लगते हैं, जो मूंगफली के ठेले पे जाते हैं, लेना कितनी है और उठा करके उस गरीब की खा रहे हो बगैर इजाजत के, अगर खाली है तो कयामत में इसका हिसाब देना पड़ेगा, रब की बारगाह में इसका हिसाब देना पड़ेगा। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने कहा ए अबू सालेह तुमने ये बाग का एक सेब खाया है मालिक की बगैर मर्जी के, चलो अब इसकी माफी करा लो वरना कयामत में इसका मालिक तुमसे मुतालबा करेगा। कई मील का सफर करते हुए आए और जब एक बाग के अंदर पहुंचे जिसकी शाखें दरिया पे लटक रही थी, समझ गए कि इसी बाग का सेब है। जब बाग के अंदर गए तो एक बुजुर्ग अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, उन्हें सलाम किया, बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया, कहा मैंने आपके बाग का एक सेब आपकी बगैर मर्जी के खा लिया है, क्या मेरी गलती माफ हो सकती है। जब इतना कहा तो बुजुर्ग ने पूछा कहां से आ रहे हो, बोले कई मील का सफर पैदल करके आ रहा हूं। बुजुर्ग ने आंखें बंद की, मौलाना रूम फरमाते हैं
लौहे महफूज अस्त पेशे औलिया, औलिया के सामने लौहे महफूज होता है। आंखें बंद करके देख लिया, ये आने वाला कोई मामूली शख्सियत नहीं है। जानते थे मैं भी समंदर हूं और आने वाला भी समंदर है, और जब समंदर समंदर से मिल जाएगा तो इस्लाम का काम हो जाएगा, दीनों मजहब का काम हो जाएगा। इसलिए कहा कि माफ तो कर दूंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि तुम्हें मेरा बाग रखाना पड़ेगा। कई साल तक बाग रखाते रहे, और जब कई साल रिवायतों में मिला 10 साल तक अपने पास में रखा अब्दुल्ला सौमई ने, और जब 10 साल पूरे हुए तो कहा अब तो मुझे जाने की इजाजत दीजिए। तो कहा कि जाने की इजाजत तो दे देंगे, लेकिन दूसरी शर्त रह गई है। बोले दूसरी शर्त क्या है? बोले दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें मेरी एक बेटी से निकाह करना पड़ेगा, मगर तुमको निकाह करोगे तो मैं उसकी बातें भी बता दूं, उसके अंदर सिफतें क्या क्या है, खासियतें क्या क्या है। बोले क्या है? कहा कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, उसके साथ तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ हरहरपुर वालों, क्या ऐसा मॉडल आज के किसी लड़के के सामने ला करके रख दिया जाए, क्या वो निकाह करने के लिए राजी होगा? हरगिज राजी नहीं होगा। तारीख पड़ जाए, मंगनी हो जाए, सारे रस्मों रिवाज हो जाए, और लड़के को ये पता चल जाए कि लड़की के पैर में फर्क है, तो निकाह करने के लिए राजी नहीं होगा। लेकिन वो गौसे आजम के वालिद थे, तकवा और परहेजगारी के खूगर थे, मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करने वाले थे। जानते थे कि मैंने एक सेब खा लिया है मकरू कराहियत वाला, उसका हिसाब कयामत में देना पड़ेगा। उस सख्ती से बचने के लिए दुनिया में सजा बर्दाश्त कर सकता हूं। अब जिस लड़की के पैर ना हो, जिस लड़की के हाथ ना हो, जिस लड़की की आंखें ना हो, जिस लड़की के कान ना हो, जिस लड़की की जुबान ना हो, बताओ वो तो जिंदा लाश है, उसका इंसान क्या करेगा? लेकिन ये गौसे आजम के वालिद थे, जानते थे पूरी जिंदगी मुझे इसे खिलाना है, लेकिन उसके बावजूद भी राजी हो गए। देखा नहीं था, राजी हो गए, सिर्फ इस वजह से कि मुझे जो मैंने सेब खाया है उसकी गलती माफ हो जाए। प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम के वालिद जब राजी हो गए, निकाह हुआ, जब कमरे के अंदर गए तो जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, फौरन अंदर बैठी दुल्हन इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई और आपको सलाम करती है और कहती है आइए बैठिए। फौरन आप कमरे से बाहर निकल आए, क्योंकि समझदार थे, जानते थे कि अगर पैरों से लंगड़ी होती तो इस्तकबाल के लिए आगे क्यों बढ़ती, और अगर ये जुबान से गूंगी होती तो मुझे सलाम क्यों करती, और अगर ये कानों से बहरी होती तो मेरे सलाम का जवाब क्यों सुनती। हजराते किरामी फौरन आकर के बुजुर्ग से कहते हैं कहीं मैं किसी और कमरे में तो नहीं चला गया। तब बुजुर्ग ने कहा नहीं बेटा, जिस कमरे में तुम गए हो वही तुम्हारी शरीक हयात है, और जिस लड़की को तुमने देखा है वही तुम्हारी ज़ौजा है। तब कहा कि आपने जो बातें बताई थी वो उसमें नहीं पाई जाती है। मेरी माँ बहनें आई हैं इस उर्से पाक में, पैगाम लेकर के जाओ गौसे आजम की वालिदा से, क्या गौसे आजम की वालिदा ने क्या पैगाम दिया। और नौजवानों बुजुर्गों, गौसे आजम के वालिद ने तुम्हें क्या पैगाम दिया, सीख करके जाओ इस जलसे से। गौसे आजम के नाना ने कहा मैंने जो बातें बताई थी वो इसलिए बताई थी, कानों से बहरी इसलिए कहा था। आज तक मेरी बेटी ने कोई गंदी बात अपने कानों से नहीं सुनी है, कोई बेहुदा बात अपने कानों से नहीं सुनी है। हाथों से लुंजी इसलिए कहा, आज तक कोई हराम माल मेरी बेटी ने हाथ तो नहीं लगाया है। और जुबान से गूंगी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोली, कभी गाली गलौज नहीं किया। और पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा था कि आज तक मेरी बेटी ने मेरी मर्जी के खिलाफ कदम घर से बाहर नहीं निकाला है। और आंखों से अंधी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा है। हरहरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है, जब बाप मुत्तकी होता है और जब माँ परहेजगार होती है, तो ऐसे गुलशन में जो फूल खिलता है उसी फूल को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती, उसी फूल को दुनिया कुतुब रब्बानी के नाम से जानती है, उसी फूल को दुनिया महबूब सुबहानी के नाम से जानती है, उसी फूल को दुनिया सैयदुल अस्याफ के नाम से जानती है, उसी फूल को दुनिया जय्यदुल अजियात के नाम से जानती है, उसी फूल को दुनिया कुतुब रब्बानी के नाम से जानती है, उसी फूल को दुनिया महबूब सुबहानी के नाम से जानती है। हाँ हाँ, वही गौसे आजम जिनकी अजमत को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने,
शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा दे दे। वही बात, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जब माँ नेक होती है और जब बाप नेक होता है तो ऐसे गुलशन में जो फूल खिलता है उसी फूल को दुनिया औलिया का सरदार गौसे आजम के नाम से। बेशक ये तो आज हमने सोच रखा है, ये तो आज हमने अपनी ज़हनियत बना ली है कि आज हम चाहते हैं कि दुनिया में हमारी मर्जी चले। आज हमने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि मेरी मंशा, जो मेरा मंशा है, जो मेरा मकसद है, उस एतबार से दुनिया चले। नहीं, दुनिया चलती है अल्लाह के निजाम से, दुनिया चलती है अल्लाह के कानून से। अल्लाह का कानून क्या है? अपने वक्त पे सुबह होती है, अपने वक्त पे शाम होती है, अपने वक्त पे सूरज निकलता है, अपने वक्त पे चांद निकलता है, अपने वक्त पे सितारे निकलते हैं, अपने वक्त पे रात ढलती है, अपने वक्त पे दिन निकलता है। हज़रात, आज अल्लाह का कानून ये है कि गेहूं के दरख्त पे गेहूं आता है, जौ के दरख्त पे जौ आता है, आम के दरख्त पे आम आता है, लीची के दरख्त पे लीची आती है। हज़रात, मैंने ऐसा नहीं देखा कि मैंने गेहूं का पौधा लगाया हो और उस पर धान उगाया हो। कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि हमने केले की खेती लगाई और उस पर आम आ गया हो। ऐसा नहीं होता है, बल्कि गेहूं के दरख्त पे गेहूं आता है, जौ के दरख्त पे जौ आता है, लीची के दरख्त पे लीची आती है, केले के दरख्त पे केला आता है। हज़रात, ये तो आज हमारी ज़हनियत बन गई। इंसान चाहे कितनी भी चोरी डकैती करे लेकिन उसकी औलाद नेक हो जाए, वो चाहे कितना भी गुटखा और खैनी खाए लेकिन उसकी औलाद गुटखे को हाथ ना लगाए। इंसान सोचता है कि मैं चाहे कितने भी गुनाह के काम करूं लेकिन मेरी औलाद परहेजगार हो जाए। इंसान चाहता है मैं कितने भी जराइम करूं लेकिन मेरी औलाद मुत्तकी और परहेजगार बन जाए। याद रखो, गेहूं के दरख्त पे गेहूं आता है, केले के दरख्त पे केला आता है, जौ के दरख्त पे जौ आता है। जब माँ बाप नेक होते हैं, नमाज के पाबंद होते हैं, तो उनकी औलाद भी नमाजी और परहेजगार होती है। रात आओ जरा अपने जहन को करीब करो। इंसान सोचता है कि मेरी मर्जी के मुताबिक काम हो जाए, नहीं, काम होता है अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, काम होता है अल्लाह के निजाम से, काम होता है अल्लाह की कुदरत से। हज़रात, जब मैं खूबसूरत बागों को देखूं तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। जब मेरे पास नेमतें आई तो मुझे तो अपने रब को याद करना चाहिए था। जब मेरे पास में नेमतें बढ़ी तो मुझे इबादत करनी चाहिए थी। आज मोबाइल आ गया, मेरा भाई सऊदी में बैठा है, मैं एक लम्हे में अपने भाई से बात कर लेता हूँ। कहाँ कितनी दूरी है, लेकिन मोबाइल ने जो है वो कितना करीब ला करके रख दिया कि एक लम्हे में ये भाई अपने अमेरिका में अपने भाई से बात कर लेता है, कोई अपने भाई से सऊदी में बात कर लेता है। जब इतनी नेमत बढ़ गई तो हमको तो चाहिए था कि सजदा बढ़ा देते, हमको तो चाहिए था कि हम इबादत में और अपने रब की इबादत और ज्यादा करने लगते। हज़रात, लेकिन हुआ क्या? मोबाइल आ गया, गुनाह बढ़ गया। मोबाइल आ गया, अय्याशी का जरिया बढ़ गया। मोबाइल आ गया, जराइम बढ़ने लगे। मोबाइल आ गया, अय्याशियां बढ़ने लगी। 1000 मजदूरों का काम कंप्यूटर पर बैठ करके एक आदमी करता है, तो हम उसको तो चाहिए था कि वो इबादत बढ़ा देता, उसको चाहिए था कि वो सजदा बढ़ा देता। लेकिन हुआ क्या? खूबसूरत गार्डनों के अंदर जाकर के लोग जब खूबसूरत गार्डन को देखते हैं, हरियाली को देखते हैं, चाहिए था तो ये कि वहां मुसल्ला बिछा करके अपने रब की इबादत करते। जब खूबसूरत नदी के किनारे पे पहुंचते, वहां जाकर के अपने रब की इबादत करते, और खूबसूरत बागात को देखते तो वहां अपने रब की इबादत करते। मौला, तेरे बंदे का लगाया हुआ बाग इतना खूबसूरत है तो तेरे दस्ते कुदरत से लगाया हुआ जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा। लेकिन हुआ क्या? खूबसूरत बागों के अंदर जिना, हिल स्टेशन पे जिना, काठमांडू में जिना, दार्जिलिंग में जिना, और खूबसूरत बागात के अंदर जिना, नदी के किनारे पे जिना, स्टेशनों पे जिना, एयरपोर्ट पे जिना। तो हुआ क्या? वही हुआ परवरदिगारे आलम की इस बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को जब लोगों ने शरारत से भर दिया, जब लोगों ने गुनाहों से भर दिया, जब लोगों ने इसको अय्याशी का अड्डा बना दिया, जब जगह जगह जिना आम हो गया, जब जगह जगह लोगों को सताना आम हो गया, तो परवरदिगारे आलम ने हल्का सा अजाब इस दुनिया में भेजा था, जिसे खांसी, जुकाम और नजला और बुखार की शक्ल में, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया। हल्का सा अजाब दुनिया में आया था। अमेरिका के एयरपोर्ट पे कुत्ते की आवाज आने लगी, चीन के एयरपोर्ट पे बिल्लियां लौटने लगी। वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो चीन जो अपने आप को सुपर पावर कहता
کہتا تھا, وہ امریکہ جو کہتا تھا دنیا میں کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا آج امریکہ کے پاس موجود نہ ہو. وہ چائنا جو کہتا تھا کہ کوئی بھی سیمپل لے کر کے آؤ اور دوسرے دن اس کی نقل, اس کی کاپی مجھ سے لے کر کے چلے جاؤ. وہ چائنا جو کہتا تھا دنیا کا ہتھیار میرے پاس ہے. وہ امریکہ جو کہتا تھا سب سے پاورفل سینا میرے پاس ہے. وہ امریکہ جو کہتا تھا سب سے بڑے ویگیانک آج میرے پاس ہیں, سب سے بڑے ڈاکٹر آج میرے پاس ہیں, سب سے بڑے سائنٹسٹ آج میرے پاس ہیں. حضرات کرام, 1.5 سال کے قریب زمانہ گزر گیا لیکن آج تک امریکہ والے کورونا کی دوا نہیں بنا پائے. آج تک چین والے کورونا کی دوا نہیں بنا پائے. امریکہ کے ویگیانک گھٹنوں کے بل گر گئے, چین کے ویگیانک گھٹنوں کے بل گر گئے. آج ویکسین آ گئی ہے, لوگ کہتے ہیں ویکسین لگوا لو تو محفوظ رہو گے. اس کے بعد کہتے ہیں ماسک لگا کے رکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ بنا کے رکھیں, اچت دوری بنا کے رکھیں. ارے جب ویکسین آ گئی تو پھر اچت دوری کا مطلب کیا؟ جب ویکسین آ گئی, دوا آ گئی تو پھر سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب کیا؟ مطلب یہی ہے کہ دوا آئی ہے لیکن دل بہلانے کے لیے آئی ہے. ابھی بھی ان ویگیانکوں کو بھی یقین نہیں ہے کہ یہ کورونا کی صحیح دوا ہے. حضرات گرامی, امریکہ کے ویگیانک جو اپنے آپ کو سب سے بڑا پاورفل کہتے تھے, اور چین کے ویگیانک جو اپنے آپ کو سب سے بڑا پاورفل کہتے تھے, آج تک اس بیماری کی دوا نہیں بنا پائے. گھٹنوں کے بل گر گئے. اللہ نے ویگیانکوں کو گھٹنوں کے بل گرا دیا اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا سب کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. نعرہ غوثیت, فیضان اولیاء اکرام, عرس محمدی, عرس شفقتی, نعرہ تکبیر, نعرہ بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. حضرات گرامی, آج میں جب کبھی ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں, جب وضو کرنے کے لیے جاتا تو لوگ کہتے تھے یہ مولانا پانی برباد کرتا ہے, یہ مولانا پانی کو ویسٹ کرتا ہے. میں کبھی اسٹیشن پہ نماز کا وقت ہو جاتا, وضو کرنے کے لیے آگے بڑھتا, وہ کہتے مولانا جلدی ہٹو ٹرین چھوٹنے والی ہے, کیا پانی برباد کر رہے ہو؟ میں کہتا اپنے رب کی عبادت کے لیے وضو کر رہا ہوں, میں اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں, اس لیے میں اپنا چہرہ دھل رہا ہوں, اس لیے میں اپنے ہاتھ دھل رہا ہوں, اس لیے میں اپنے پیر دھل رہا ہوں, اس لیے میں کلی کر رہا ہوں, ناک میں پانی چڑھا رہا ہوں. وہ کہتے مولانا پانی ویسٹ کر رہا ہے, وہ کہتے مولانا پانی برباد کر رہا ہے. کل جسے میرا وضو پانی کا ویسٹیج نظر آتا تھا, کل جسے میرا وضو پانی کا برباد کرنا نظر آتا تھا, آج وہی ویگیانک کہہ رہے ہیں اگر کورونا سے بچنا ہے تو بار بار ہاتھ دھونا پڑے گا, اگر کورونا سے بچنا ہے تو چہرہ دھونا پڑے گا, اگر کورونا سے بچنا ہے تو بار بار کلی کرنا پڑے گی, اگر کورونا سے بچنا ہے تو بار بار ناک میں پانی چڑھانا پڑے گا. جس پر ان کی نظر آج گئی ہے, مدینے والے مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ نبی کی سنت پہ عمل کرو گے تو بیماری سے بھی محفوظ رہو گے, رب کی عبادت بھی ہوتی رہے. حق نمائی سے کبھی دور نہیں ہو سکتا, غیر کے سامنے مجبور نہیں ہو سکتا. جو لگاتا ہے چہرے پہ وضو کا پانی, اس کا چہرہ کبھی بے نور نہیں ہو سکتا. عرض یہ کر رہا تھا, اللہ کا قانون چلتا ہے, اللہ کا نظام چلتا ہے. وقت بہت کم ہے, اللہ کا نظام چلتا ہے. اللہ کا نظام کیا ہے؟ گیہوں کے درخت پہ گیہوں آتا ہے, جو کے درخت پہ جو آتا ہے, آم کے پیڑ پہ آم آتے ہیں, کیلے کے پیڑ پہ کیلا آتا ہے. ارے جب باپ نیک ہوتا ہے ماں نیک ہوتی ہے, جب باپ پرہیزگار ہوتا ہے اور جب ماں پرہیزگار ہوتی ہے تو ایسے گلشن میں جو پھول کھلتا ہے اسی پھول کو دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے. حضرات, جب ماں نیک ہوتی ہے اور ماں قرآن پڑھنے والی فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانے والا حسین ہوتا ہے. ماں جب فاطمہ ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا بغداد کا غوث اعظم ہوتا ہے. ماں جب ماہ نور بی بی ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے. ماں جب عارفہ ہوتی ہے تو بیٹا بابا فرید الدین گنج شکر ہوتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا علاء الدین علی احمد صابر ہوتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا شاہ جی محمد شیر میاں ہوتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا اعلیٰ حضرت ہوتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا مفتی اعظم ہوتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا تاج الشریعہ ہوتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا
शाह शराफत होता है, माँ जब नेक होती है तो बेटा शाहदाना वली सरकार होता है, माँ जब नेक होती है तो बेटा हाजी वारिस अली होता है। इसलिए ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो। हीरो हीरोइन का किरदार दे के जवान मत करो, फिल्मी एक्टरों का किरदार दे के जवान मत करो। उन्हें जवान करना है तो करबला के हुसैन का किरदार दे के जवान करो, उन्हें जवान करना है तो बगदाद के गौसे आजम का किरदार दे के जवान करो, औलियाए किराम का किरदार दे करके जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। सही बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ईरान छोड़ा अपने रब की रजा के लिए, बगदाद आए, मदरसे में तालीम हासिल की, 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में तालीम हासिल की। उसके बाद बगदाद पहुंचे, 8 साल मदरसा निजामिया में तालीम हासिल की। उसके बाद मुजाहिदे में लग गए। 25 साल गौसे आजम ने इस हाल में गुजारे। मेरे गौस फरमाते न कोई मुझे पहचानता था न मैं किसी को पहचानता था। दरख्तों के पत्ते खा खा करके, छाले खा खा करके गौसे आजम ने गुजारा किया। और 40 साल गौसे आजम ने वाज कहा, तकरीर की गौसे आजम ने, वाजो नसीहत की गौसे आजम ने। उन्हीं 40 साल में 32 साल या 33 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। जिस तरीके से इस्लाम की खिदमत होती है उस तरीके पे बैठ करके गौसे आजम ने इस्लाम की खिदमत की। कलम के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, गौसे आजम ने किताबें लिखी। मदरसे में दर्स व तदरीस के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, गौसे आजम ने 32 या 33 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। वाजो नसीहत तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, गौसे आजम ने 40 साल तक वाज कहा। और गौसे आजम की मजलिस में शुरू में 10-15 लोगों का मजमा होता था, फिर अल्लाह ने वो मकाम दिया कि 70,000 का मजमा होता था और ईदगाह पे मिंबर लगता था गौसे आजम का। और गौसे आजम के वाज की ये शान कि जितनी आवाज सामने बैठने वाला सुनता था उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता था। गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में 400 उलमाए किराम सिर्फ गौसे आजम की तकरीर को लिखने के लिए बैठते थे। ये गौसे आजम है। जिस महाज पे इस्लाम की खिदमत होती है, गौसे आजम ने उस रास्ते पे बैठ करके इस्लाम की खिदमत की, इस्लाम के मिशन को आगे बढ़ाया और पूरी जिंदगी अपने रब को याद करते रहे। अल्लाह अल्लाह करके जिंदगी गुजार के चले गए। परवरदिगार ने उनका नाम मिटने नहीं दिया बल्कि तमाम लोगों के दिलों में गौसे आजम का नाम डाल दिया। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। बातें बहुत करनी थी लेकिन क्या करें, वक्त तमाम हुआ और मदहा बाकी रही। सफीना चाहिए इस बहरे बेकरार के लिए। परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जिंदगी सवारिए दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात